Hi everyone. So, in today's topic, we are going to talk about Prakruti, or we can say it Prakriti. This is one of the most important topic, and it is having the much importance in Ayurvedic concept, and this is the basic concepts of Ayurveda, and it is really very important to know about Prakriti when you are dealing with your patients, when you are dealing with your healthy life. And in exams also it is very important because there are many questions which can be asked from this topic. So let's start this. So according to Ayurveda, every individual is unique. Not only each individual has different size and shape, but its physiological and even psychological characters are different. This is because they have predominant Panchamahabhut, dosha or Triguna at the time of birth, which decides their constitution. इसका मतलब ये हुआ कि आयुर्वेद के अंदर हर एक जो व्यक्ति है उसको यूनिक बताया गया है. मतलब हर एक व्यक्ति है, उसकी साइज़ है, उसका शेप है, वो तो अलग है ही, बट एट द सेम टाइम उनके जो फिजियोलॉजिकल एंड साइकोलॉजिकल कैरेक्टर्स हैं वो भी अलग है. और वो चीज़ें कौन क्या डिसाइड करती हैं, कौन डिसाइड करता है ये सब चीज़ें कि इसमें डिफरेंट होगी. जब पंचमहाभूत या दोष एंड जो त्रिगुणा है वो बॉडी के अंदर बर्थ के टाइम पे जो प्रीडोमिनेंट होते हैं वो डिसाइड करते हैं कि व्यक्ति की जो प्रकृति है, जब अगर हम उसको स्वभाव बोले या कॉन्स्टिट्यूशन बोले तो वो कैसा होगा, तो उसको हम प्रकृति बोलते हैं. सो वंस दिस कॉन्स्टिट्यूशन इज सेट, इट इज़ परमानेंट फॉर दैट इंडिविजुअल. इट इज़ लाइक watermark on the currency notes. Once this predominance is decided, every tissue, every organ, every system in the body has this mark or predominance in them, and hence they function according to their predominance. मतलब एक बार गर्भ जो हमारा होता है, जो फीटस होता है जब बनता है, तो उस गर्भ के उत्पादन के दरमियान जो महाभूत, जो दोष, जो त्रिगुण का डोमिनेंस होगा उसके हिसाब से प्रकृति का निर्धारण होगा. और ये जो प्रकृति है पूरी लाइफ स्पान तक बनी रहती है, राइट. तो जो बॉडी के अंदर यहाँ पे दिखाया गया है, जो भी टिश्यूज़ हैं, ऑर्गन्स हैं, सिस्टम्स हैं, जो इवन इफ आई एम टॉकिंग अबाउट द सेल, तो उसके अंदर भी वो दोष का, वो महाभूत का, वो त्रिगुण का डोमिनेंस होता है. If proper care is not taken, then this slight predominance may lead to certain diseases. This is because of the Prakriti or constitution. So according to this predominance, every individual needs certain types of food, drinks and behavior to keep him or her healthy. मतलब व्यक्ति की जो प्रकृति है, अगर उसके हिसाब से इफ़ ही इज़ कंज्यूमिंग फूड, इफ़ ही इज़ डूइंग हिज एक्टिविटी, इफ़ ही इज़ डूइंग और ही और शी डूइंग his or her daily routine, then आपकी जो हेल्थ है, जो इक्विलिब्रियम है, वो बना रहता है. So therefore each individual must know his own constitution so that he or she can take opposite qualities of food, drink etc. to keep him or her healthy. मतलब आपकी प्रकृति अगर वात है और आप ऐसे खुराक या आहार का ग्रहण करते हैं जो वात कारक है, जो वायु को बढ़ाती है, तो उससे क्या होगा, ऑफकोर्स वायु की वृद्धि होगी और विच विल लीड टू द पैथोलॉजिकल कंडीशन, विच विल लीड टू द डिसीज़. तो ऐसी चीज़ें लेनी है कॉन्स्टिट्यूशन जानने के बाद जो आपकी प्रकृति के विरुद्ध है. ओके, सो टू कीप हिम और हर हेल्दी, hence Ayurvedic physician makes an attempt to understand prakriti of each and every patient so that proper advice of health can be given to the patient. So prakriti is also important for the making correct diagnosis of the disease, for giving proper treatment and रसायन मतलब जो rejuvenation है to the patient. तो प्रकृति को इसलिए हमको जानना है जस्ट कि आप कौन सा फूड लेना है, कौन सा नहीं लेना है, अगर पेशेंट आपके पास आता है तो उसको हेल्दी लाइफ कैसे लीड करनी है, उनको प्रॉपर ट्रीटमेंट कैसे देनी है और उनका डायग्नोसिस करके प्रोग्नोसिस कैसा होगा, वो सब जानने के लिए इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू नो द प्रकृति. सो हम देखते हैं व्हाट इज़ प्रकृति. So in the society, we observe the differences in the individuals. Some like chili, spicy food.
others are sweet eaters, some enjoy warm summer, some prefer winter. Some are big eaters while others prefer to eat small quantity of food. This shows that each and every individual has its own specific liking and disliking. Right? We have seen it that if I'm talking about the bunch of people, like you and your friends are together, so everybody's liking and dislikings are not same. Everybody is different, right? And it is because of the prakruti they are having. It is because of the constitution they are having. It is because of the predominance of dosha and panch mahaput they are having. Okay, so these individualistic features are the manifestations of prakruti or constitution or the biotype. In short, प्रकृति means the individual nature, जिसको हम स्वभाव भी बोलते हैं. ओके, फिर हम जानेंगे प्रकृति शब्द की व्युत्पत्ति या फिर उत्पत्ति कैसे हुई. तो जैसे हम देख सकते हैं प्रकृति शब्द है वो दो चीज़ों से बना हुआ है, प्र प्लस कृति. यहाँ पे है प्र का मतलब बिफोर, बिगिनिंग, कमेंसमेंट और सोर्स ऑफ ओरिजिन, एंड कृति का मतलब है क्रिएशन और टू डू. तो इस हिसाब से प्रकृति का मतलब हुआ द फर्स्ट फॉर्म्ड नेचर और द ओरिजिनल फॉर्म ऑफ द बीइंग बिफोर एनीथिंग एल्स, दैट इज़ कॉल्ड प्रकृति. कुछ भी चीज़ें उत्पन्न होने से पहले जिस चीज़ की उत्पत्ति हुई है, सबसे पहले जिस चीज़ की उत्पत्ति हुई है, सबसे पहले जो नेचर के अंदर फॉर्म हुआ है, दैट इज़ कॉल्ड प्रकृति. व्हाट इज़ द डेफिनेशन ऑफ प्रकृति? तो जन्म मरणांतराल भाविनी अविकारिणी दोषास्थिति प्रकृति. ये अगर आप श्लोक करते हो तो आपको उसको प्रकृति की डेफिनेशन आप पेपर में थियोरी में लिख सकते हो. मतलब जो जन्म से लेके मृत्यु तक एक जैसे बनी रहती है, जो अविकारी है, मतलब जिसको चेंज नहीं किया जा सकता, अनचेंजेबल है. और दोषा स्थिति, जो दोष है उसके प्रीडोमिनेंस के साथ होती है, दैट इज़ कॉल्ड प्रकृति. मतलब प्रकृति के अंदर दोषों का प्रीडोमिनेंस होता है, वो अनचेंजेबल है क्वालिटेटिवली एंड क्वांटिटेटिवली, एंड वो बर्थ से डेथ तक बनी रहती है, दैट इज़ कॉल्ड प्रकृति. चरक ने मीमांसा अध्याय में 8 में बताया है कि प्रकृतिस्तु स्वभावः, मतलब प्रकृति है वो स्वभाव है. फिर चरक ने शारीस्थान में बताया है स्वभावम इति प्रत्यात्मनियत रूपम. यहाँ पे मैंने लिखा है चक्रपाणी टीका, मतलब जितनी भी हमारी संहिता है तो उसके ऊपर अलग अलग जो आचार्य हैं उन्होंने अपनी टीकाएँ लिखी है. दे हैव गिवन देयर ओन परसेप्शन ऑफ दैट पर्टिकुलर क्या बोलते हैं संहिता. तो अगर आप रेफरेंस बुक जो पढ़ रहे हो वो तो ठीक है, बट जब आप संहिता बाय करोगे या फिर संहिता आपने जो ली है तो उसमें भी अलग अलग टीकाकार की संहिता आपको मार्केट में अवेलेबल मिलेगी. तो जनरली हम चरक के बारे में जब बात करते हैं तो चक्रपाणी टीका इज़ अ वेरी फेमस टीका एंड वी जनरली रिफर दैट. तो उसमें ऐसा बताया गया है कि स्वभावम इति प्रत्यात्मनियत रूपम, मतलब जो कॉर्डिनल फीचर्स है, जो पहले से बना हुआ है, जिसको हम स्वभाव बोलते हैं, दैट इज़ प्रकृति. प्रकृति इज़ वंस ओन कॉन्स्टिट्यूशन विच इज़ इंडिविजुअल स्पेसिफिक, मीन्स इट इज़ कंट्रोल्ड बाय इट्स ओन फिजियोलॉजी. प्रकृति इज़ इन्यूमरेशन ऑफ बॉडी फीचर्स विच आर इंटरनल एज वेल एज एक्सटर्नल. मतलब इफ आई एम टॉकिंग अबाउट द प्रकृति, तो इंटरनल फीचर्स और एक्सटर्नल फीचर्स everything would depend on that particular predominance of dosha, and that is swabhav. What can be the synonyms? तो उसके जो synonyms है प्रकृति के, वो हैं स्वभाव, योनि, लिंग, परमात्मनि, धरणी, गुह्यम, योषिति एंड शक्त्यो. आपको एग्ज़ाम में शायद 10 मार्क्स के अंदर पूछा जाए प्रकृति के बारे में, तो you have to write down the synonyms, the व्युत्पत्ति, the definition, everything. अब देखते हैं कि प्रकृति का फॉर्मेशन कैसे हुआ है. तो सुश्रुत ने शारीस्थान अध्याय 4 में दिखाया है कि शुक्र शोणित संयोगे यो भवेद दोष उत्कटः. मतलब शुक्र और शोणित का जब संयोग होता है, शुक्र मतलब स्पर्म और शोणित मतलब यहाँ पे हम
बीज, जो स्त्री बीज है, राइट, जो ओवम है, उसको हम लेते हैं, तो उस दोनों का संयोग जब होता है, जब तो उसके दरमियान जिस दोष का प्रीडोमिनेंस होगा, भवेत दोष उत्कट, मतलब जिस दोष का डोमिनेंस होगा उस टाइम पे उस दोष की उस प्रकार की प्रकृति डिटरमाइन होगी. So doshika predominance at the time of union of male and female gamete forms a prakriti. For example, at the time of birth, if vata dosh is predominant qualitatively and quantitatively compared to pitta and kapha, then we can call the individual having vataj prakriti. Predominant vata dosh affects the anatomy, physiology, psychology and immunity of that person. So features are seen according to the properties and functions of वात दोषा. मतलब शुक्र और शोणित का जो संयोग है उस टाइम के अंदर जिस दोष का प्रीडोमिनेंट हुआ उस टाइम पे, तो ऐसी प्रकृति का निर्माण होगा जो लाइफ टाइम तक वही प्रकृति रहती है. So now we'll see the factors responsible for the determination of prakriti. So prakriti or physical constitution or temperament of the individual determined by the following factors such as shukra shonit prakriti. मतलब जो स्पर्म के अंदर, जो ओवम के अंदर जो दोष है जिसका डोमिनेंस होगा एट द टाइम ऑफ कंसेप्शन, तो उसके हिसाब से प्रकृति का निर्धारण होगा. तो प्रकृति को निर्धारित करने के बहुत सारे फैक्टर्स के अंदर एक फैक्टर है शुक्र शोणित प्रकृति. जैसे आगे मैंने बोला कि जो भी जितने भी सेल्स हैं, टिश्यूज़ हैं, ऑर्गन्स हैं, सिस्टम्स हैं, वो सभी की जिस दोष का प्रीडोमिनेंस होगा उस दोष की उसकी व्यक्ति की प्रकृति होगी. तो अगर व्यक्ति का जो स्पर्म है और जिस लेडी है उसका जो ओवम है, तो उसमें जिस दोष का डोमिनेंस होगा कंसेप्शन के दौरान, बिकॉज दिस आर ऑल्सो द सेल्स, राइट, तो उस फैक्टर की वजह से जो प्रकृति है उसका निर्धारण होगा, एंड दैट इज शुक्र शोणित प्रकृति. देन काल गर्भाशय प्रकृति. काल मतलब हम सीजन्स और कंडीशन ऑफ द यूटेरस. गर्भाशय मतलब जो ऋतुएं हैं हमारी, राइट, और जो यूट्रस है, जो गर्भाशय है, उसकी जो स्थिति है एट द टाइम ऑफ कंसेप्शन, राइट, तो वो भी उसमें अफेक्ट करती है एंड थ्रू आउट द यूटराइन लाइफ, नॉट ओनली इन द टाइम ऑफ कंसेप्शन, बट जितना भी यूटराइन लाइफ है, जितना भी गर्भ है, वो जो गर्भाशय के अंदर होता है, तो उस दरमियान जो कैरेक्टर्स फॉर्म होते हैं, राइट, तो इट ऑल्सो अफेक्ट्स इन द प्रकृति निर्धारण. यहाँ पे काल मतलब जो दोष प्रीडोमिनेंस है ड्यूरिंग द धारण काल ऑफ गर्भ. जब कंसेप्शन हुआ है, जब गर्भाशय में गर्भ की स्थापना हुई है, उस समय, उस वक्त का जो काल है, राइट, अगर हमको सीज़न बोले या फिर दिवस और रात बोले, जो समय है, तो उस समय के दरमियान जिस दोष का डोमिनेंस होगा उस दोष के हिसाब से वो एक फैक्टर के रूप में उभर के आएगा कि ये प्रकृति निर्धारण के अंदर रिस्पॉन्सिबल है. एट द सेम टाइम गर्भाशय, द कंडीशन ऑफ द यूट्रस ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी, वो भी अफेक्ट करता है. अगर जो गर्भाशय है या फिर जो यूटराइन कैनाल है वो अगर इन्फेक्टेड होगी तो उसके हिसाब से एबनॉर्मलिटीज़ गर्भ के अंदर होती है. एट द सेम टाइम इन्फेक्टिव यूट्रस होगा तो उसकी वजह से भी प्रीमेच्योर और इल डेवलप बेबी होती है, प्रीमेच्योर डिलीवरी होती है, राइट. तो गर्भाशय का भी स्थिति उसमें रिस्पॉन्सिबल होता है एंड इट इज़ प्लेइंग वन ऑफ द फैक्टर्स फॉर डिटरमाइनिंग द प्रकृति. फिर मातृ आहार विहार प्रकृति, मतलब मदर जो होती है कौन से फूड कंज्यूम करती है, कौन से रेजिमेंट्स अपने लाइफस्टाइल के अंदर शी इज़ इंक्लूडिंग, तो वो भी उसके अंदर रोल प्ले करता है ड्यूरिंग द होल प्रेगनेंसी स्पान. हमारे आयुर्वेद के अंदर जो गर्भावक्रांति बताई है, जो 9 months की जो गर्भ की विकास बताया है, उसके अकॉर्डिंग कौन से महीने के अंदर कौन सा
माता को आहार ग्रहण करना चाहिए, कौन सी चीज़ें करनी चाहिए, कौन सी चीज़ें नहीं करनी चाहिए, कैसे आप खुद की रक्षा करनी चाहिए, ये सब हमको दिखाया है आचार्य ने। तो अगर उसके हिसाब से द मदर इफ़ यू नो बिहेविंग अकॉर्डिंग टू व्हाट आचार्य हैज़ सेड, तो उसके जो बेबी है उसका डेवलपमेंट भी होता है। एट द सेम टाइम इफ़ उसके अकॉर्डिंग अगर नहीं जो मदर है वो बिहेव करती है, तो उसकी वजह से सम abnormalities would be there, and it is one of the factor जो मदर फूड एंड विहार जो रेजिमेन होते हैं वो कंज्यूम करती है। यहाँ पे एक एग्जाम्पल दिया है कि ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी इफ़ द मदर इज़ टेकिंग सेडेटिव्स और ट्रंक्विलाइजर्स, तो जो बच्चा है पेट के अंदर, उसके अंदर डेवलपमेंटल एनामोलीज भी क्रिएट हो सकती है। दिस इज़ वन ऑफ द एग्जाम्पल। फिर है महाभूत विकार प्रकृति, नेचर ऑफ द महाभूत कंप्राइजिंग द फीटस। इट हैज़ बीन मैंशन इन द सूक्ष्म शरीर चैप्टर दैट द महाभूतास विच प्रीडोमिनेट ड्यूरिंग प्रेगनेंसी विल हैव राइज टू द रिस्पेक्टिव प्रकृति। एग्जाम्पल दिया है, अगर पृथ्वी महाभूत और जल महाभूत है वो प्रीडोमिनेंट है पेरेंट्स के अंदर एट द टाइम ऑफ यूनियन ऑफ कॉइटस, एट द टाइम ऑफ यूनियन इन कॉइटस, जब शुक्र और शौनित का संयोग होता है उस टाइम पे अगर पेरेंट्स के अंदर पृथ्वी और जल महाभूत का प्रीडोमिनेंस होता है, एंड ड्यूरिंग प्रेगनेंसी जो मदर है उसके अंदर भी अगर पृथ्वी और जल महाभूत का प्रीडोमिनेंस रहेगा, तो जो प्रकृति होगी चाइल्ड की, इट वुड बी कफ प्रकृति, श्लेष्म प्रकृति। इफ वायु एंड आकाश भूत आर डोमिनेटिंग, अ वात प्रकृति चाइल्ड विल बेयर, एंड सिमिलरली अग्नि एंड जल महाभूत प्रीडोमिनेंट होगा तो बच्चा पित्त प्रकृति वाला होगा। वाघभट ने आगे बताया है कि डिपेंडिंग ऑन द दोषा दैट इज प्रीडोमिनेटेड इन द शुक्र एंड अशुक्र मतलब स्त्री बीज एट द टाइम ऑफ द यूनियन इन द भोज्य, चेष्टा एंड गर्भाशय एंड ऋतु 7 काइंड ऑफ प्रकृति आर प्रोड्यूस्ड। अष्टांग हृदय हमको ये श्लोक नहीं करना है, इट इज़ जस्ट यहाँ पे मैंने दिया है। तो इसमें ऐसा दिखाया गया है कि एट द टाइम ऑफ द यूनियन ऑफ शुक्र एंड अशुक्र, यहाँ से शुक्र की मतलब स्पर्म से लेना है, अशुक्र मतलब स्त्री बीज लेना है, और जो भी फूड ग्रहण करते हैं माता, जो भी एक्टिविटीज़ करती है, जो यूट्रस होता है, गर्भाशय की अवस्था होती है, और जो ऋतु होती है मतलब किस सीज़न के अंदर कंसेप्शन हुआ है, किस काल में कंसेप्शन हुआ है, वो चारों चीज़ें प्रकृति के निर्धारण के अंदर, प्रकृति को डिटरमाइन करने के अंदर रिस्पॉन्सिबल फैक्टर्स हैं, और उसकी वजह से 7 टाइप्स ऑफ प्रकृति कैन बी प्रोड्यूस्ड। So apart from this above factors, prakriti also form on the basis of जाति प्रसक्ता, कुल प्रसक्ता, देशानुपातिनी, वयानुपातिनी, कालानुपातिनी एंड प्रत्यात्मनीयता। सो ये जो 6 चीज़ें बताई हैं वो आचार्य चरक ने इंद्रिय स्थान अध्याय 1 के अंदर बताई है, एंड इट इज़ कॉल्ड द जात्यादि प्रकृति। आपको शायद वाइवा में भी पूछा जाए कि व्हाट इज़ जात्यादि प्रकृति, या फिर 2 मार्क्स के एग्जाम के 2 मार्क्स के क्वेश्चन के अंदर थियोरी पेपर में पूछा जाए कि राइट डाउन द जात्यादि प्रकृति। तो आपको ये 6 नाम लिखने हैं, दैट इज़ जाति प्रसक्ता, कुल प्रसक्ता, देशानुपातिनी, वयानुपातिनी, कालानुपातिनी एंड प्रत्यात्मनीयता। तो व्हाट इज़ जाति प्रसक्ता, मतलब कौन सी जाति का जाति में उनका जन्म हुआ है, या फिर जो मदर है या फादर है वो कौन सी जाति के हैं, राइट। तो वो भी उसमें रोल प्ले करता है, मतलब जो जापानीज़ होते हैं तो उनकी अलग ट्रेड्स होती हैं, वो कैसे दिखते हैं, तो उनके बच्चे भी सेम दिखेंगे, राइट। दैट इज़ कॉल्ड जाति प्रसक्ता। फिर कुल प्रसक्ता, किस कुल के अंदर जन्म हुआ है या फिर किस कुल की माता या पिता है, तो उसके आधार से प्रकृति का निर्धारण होता है। तो जो बच्चा होता है उसकी प्रकृति के अंदर भी ये जो कुल है उसके जो फीचर्स हैं वो उसमें दिखाई देंगे कि अगर मम्मी पापा बौने हैं, ड्वार्फ हैं, या उनकी हाइट कम है, बौने नहीं अगर बट हाइट कम है या फिर हाइट ज़्यादा है, तो जनरली ऐसी सस्पेक्टेबिलिटी होती है कि बच्चों के अंदर भी सेम फीचर्स होते हैं। देन देशानुपातिनी, मतलब किस देश के अंदर उनका जन्म हुआ है,
राइट, ऐसे देश के अंदर जन्म हुआ है कि जहाँ के जो लोग हैं तो वो ज़्यादा हाइट वाले होते हैं, उनका जो बॉडी बिल्ड है वो थोड़ा स्ट्रॉन्ग होता है, तो दैट इज़ कॉल्ड देशानुपातिनी। फिर वयानुपातिनी मतलब नेचुरल चेंजेस अकॉर्डिंग टू एज, एज के हिसाब से भी उसमें कुछ नेचुरल चेंजेस होते हैं। अगर जो मदर होती है एंड फादर होते हैं वो यंग एज है उनकी और कंसेप्शन होता है, तो उसके हिसाब से प्रकृति उसमें निर्धारण होगी। अगर वो लेट कंसेप्शन करते हैं, मदर की एज ज़्यादा हो गई है, राइट, तो उसके हिसाब से जो भी चेंजेस होते हैं वो होते हैं। देन कालानुपातिनी, कालानुपातिनी मतलब नेचुरल चेंजेस अकॉर्डिंग टू द टाइम, काल के हिसाब से कंसेप्शन का काल कौन सा है, यहाँ पे सीज़न भी बताया जा सकता है कि सीज़न कौन सी है, राइट, तो उसके हिसाब से भी थोड़े चेंजेस मिलते हैं प्रकृति के निर्धारण के अंदर। देन प्रत्यात्मनीयता मतलब पर्सनल हैबिट ऑफ अ मदर, पर्सनल हैबिट ऑफ अ फादर, वो भी उसमें रोल प्ले करती है प्रकृति का डिटर्मिनेशन करने के अंदर, एंड दैट इज कॉल्ड जात्यादि प्रकृति, एंड द रेफरेंस हैज़ बीन गिवन इन द चरक इंद्रियस्थान अध्याय 1। नाउ विल क्लासिफाई द प्रकृति। सो प्रकृति के दो टाइप्स बताए हैं, दोषज प्रकृति एंड मानस प्रकृति। दोषज प्रकृति मतलब दोष जो बॉडी के अंदर होते हैं, इसका जो प्रीडोमिनेंस होता है उसके हिसाब से जो प्रकृति बनती है, जो देह प्रकृति जिसको हम बोलते हैं, दैट इज़ कॉल्ड दोषज प्रकृति, और दूसरी है मानस प्रकृति। जो दोषज प्रकृति बताई है सात कैसे, 3 दोष हैं, 3 दोष की अलग अलग एक प्रकृति, जैसे वात प्रकृति, पित्त प्रकृति एंड कफ प्रकृति। फिर 3 प्रकृति ऐसी जो 2 दोषों के संयोग से बनती है, मतलब वात और पित्त के कॉम्बिनेशन से बनेगी वात पित्त प्रकृति, पित्त और कफ से के कॉम्बिनेशन से बनेंगे पित्त कफ प्रकृति, और वात और कफ के डोमिनेंस से बनेगी वात कफ प्रकृति। और लास्ट जो 7वीं प्रकृति है, दैट इज़ तीनों दोष मिलके, वात पित्त और कफ तीनों दोष मिलके जब एक प्रकृति बनती है, तो दैट इज कॉल्ड वात पित्त कफ प्रकृति, राइट। तो दोषज जो प्रकृति है वो 7 बताई है, देह प्रकृति है उसको बोलते हैं, और वो 7 बताई है। अष्टांग हृदय में आचार्य वाग्भट ने सूत्रस्थान अध्याय 1 में बताया है ये श्लोक कि जो 3 प्रकृति है, वात पित्त और कफ, राइट, उसमें से जो वात प्रकृति है इसको हीन प्रकृति बताया गया है, पित्त प्रकृति है वो मध्य प्रकृति बताई गई है, और जो कफ प्रकृति है उसको उत्तम बताया गया है। वो कैसे डिटरमाइन करेंगे हम, जब हम आगे उसके कैरेक्टरिस्टिक्स देखेंगे वात पित्त और कफ प्रकृति को, तो देन विल कम टू नो। बट अभी आपको ये याद रखना है कि वात को हीन, पित्त को मध्य और कफ को उत्तम प्रकृति बताई है। फिर समधातु समास्ताशु श्रेष्ठा मतलब तीनों दोषों से जो बनी हुई है, वात पित्त और कफ के संयोग से जो प्रकृति बनी है वात पित्त कफ प्रकृति, दैट इज कॉल्ड द श्रेष्ठ प्रकृति। और द्विदोषज जो प्रकृति है उसको बताई है निंद्य, मतलब इट इज़ नॉट गुड, बिकॉज अगर मैं वात पित्त प्रकृति की बात करूं, तो अगर वात प्रकृति वाला पुरुष है तो उसके अंदर वात वृद्धि होगी, तो उसके जो उपक्रम है वो अगर मैं अप्लाई करूंगी तो उससे अगर कफ के साथ उसका मिलन है, मतलब वात और कफ प्रकृति है या फिर वात और पित्त है, तो उसकी जो उपक्रम होंगे, उसके जो प्रोसीजर्स होंगी वो उसको वृद्धि और क्षय कराने की, तो वो डिफरेंट हो जाएगी। तो अगर वात के लिए वो जो उपक्रम है, वो जो प्रोसीजर है, इफ़ इट इज़ वर्किंग ऑन दैट, तो फिर वो कफ के लिए या फिर पित्त के लिए जिसके साथ उसका संयोग हुआ है वो विरुद्ध हो जाएगी। तो दैट इज़ वाई इट इज़ वेरी उसको ट्रीटमेंट करने के लिए थोड़ा टफ हो जाता है। दैट इज़ कॉल्ड, इट इज़ कॉल्ड निंद्य प्रकृति। तो आपको ये याद रखना है, शायद वाइवा में आपको पूछा जाए कि हीन प्रकृति कौन सी है, मध्यम कौन सी है, उत्तम कौन सी है, श्रेष्ठ किसको बोलते हैं और निंद्य किसको बोलते हैं। ओके चरक ने सूत्रस्थान अध्याय में भी यही बताया है, सेम चीज़। उन्होंने ऐसा बताया है कि जो अकेली प्रकृति है वो सदा तुरा बताया है, मतलब हमेशा रोगी रहती हैं वो,
दैट इज़ सम डिफरेंट कंसेप्ट इन दैट, बट हमको ये अष्टांग हृदय वाला याद रखना है, ठीक है. वी आर नॉट गोइंग विद दिस. फिर मानस प्रकृति, जिसको हम गुणामयी प्रकृति भी बोलते हैं. सो बिकॉज ऑफ द प्रीडोमिनेंस ऑफ सत्व, रज एंड तम, हमने जो 3 त्रिगुण देखे थे, राइट, सत्व, रज एंड तम, या फिर महादोष, मानस दोष या फिर महादोष जो हमने देखे थे, दैट इज सत्व, रज एंड तम. तो उसके हिसाब से भी ये प्रकृति बनती है, सात्विक प्रकृति, राजसिक प्रकृति एंड तामसिक प्रकृति. तो जो सात्विक प्रकृति है, राजसिक प्रकृति और तामसिक प्रकृति है, उसके भी अलग अलग टाइप्स बताए गए हैं, सब टाइप्स बताए गए हैं, राइट. विल लर्न अबाउट दिस जब हम मानस प्रकृति के बारे में पढ़ेंगे. अभी हम देह प्रकृति पे टारगेट करेंगे. और दूसरा एक टाइप बताया है किसी आचार्य ने कि भौतिक प्रकृति, मतलब अकॉर्डिंग टू द प्रीडोमिनेंस ऑफ द पंच महाभूत एलिमेंट्स, पार्थिव, आप्य, तेजस, वायव्य एंड आकाश. तो उसके हिसाब से भी 5 भौतिक प्रकृति जो है वो बनती है. बट जनरली वी आर कंसीडरिंग ओनली देह प्रकृति, विच इज़ वात, पित्त, कफ, वात, पित्त, कफ, वात, कफ एंड वात, पित्त, कफ प्रकृति. सो ओके, आज के जो भी लेक्चर है उसके अंदर हम इतना रखते हैं. नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम कैरेक्टरिस्टिक्स देखेंगे प्रकृति के हिसाब से. वात, पित्त और कफ प्रकृति के जो भी लक्षण हैं वो कौन से होंगे वो देखेंगे. सो इट वाज समथिंग बेसिक आई हैव लेट यू नो अबाउट द प्रकृति in today's lecture. Let me know if you are having any query regarding this.